Hello friends, good evening. Today we'll be discussing about salivary gland tumors. So before starting, I would like to thank Chandana Shri ma'am for sharing the wonderful notes with us. These notes are very helpful and uh, are very useful for quick revision. So without any further delay, let's get started. And the link for the notes is given in the description below. You can download it from there. So salivary gland tumors, these arise from the cells in the salivary gland. So the salivary gland has stroma and the parenchyma. The parenchyma has three parts, that is secretory, non-secretory and ductal part. The secretory, that is SNR, is further divided into serous and mucous cells. The non-secretory is divided into myoepithelial and oncocytes. The ductal is further divided into secretory, excretory and main ductal. The secretory among the ductal is divided into intercalated and striated. So a specific point regarding the oncocyte, which are a non-secretory cell of the parenchyma, that these are the large spherical cells which are rich in mitochondria and is seen in old age. And as you can see in the diagram, this is the ductal part, and the ductal part is having the intercalated duct and the secretory duct. Surrounding the intercalated duct is the myoepithelial cell, and inside is the serous cell or the mucous cell, or sometimes the mixed cells, mixed acinus. So this was the cells in the salivary gland. Now we see the WHO classification of the salivary gland. So these are divided into initially as epithelial tumor and non-epithelial tumor. Epithelial tumor are further divided into adenoma and carcinoma, and carcinoma is further divided into high grade and low grade. So first we'll see the adenoma. Adenoma, these are could be pleomorphic or monomorphic. So monomorphic adenoma, there are various examples, that is adenolymphoma, also known as Warthin's tumor. Other is oncocytoma. Then we have basal cell adenoma, then canalicular adenoma and myoepithelioma. This was adenomas. These are benign tumors but can change into malignant ones sometimes. Then we have carcinoma, which is malignant, which could be low grade or high grade carcinoma. Low grade, we have low grade mucoepidermoid carcinoma or acinic cell carcinoma. In high grade, we have high grade mucoepidermoid carcinoma, adenoid cystic carcinoma. Then we have carcinoma X pleomorphic adenoma, that is conversion of pleomorphic adenoma to the carcinoma. Then squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, anaplastic carcinoma, malignant lymphoepithelioma, also known as eschimoma. These are the epithelial tumors. Now we see the non-epithelial tumors. Non-epithelial tumors are like the hemangioma, neurofibroma, lymphangioma, neurilemoma. Then we have lymphomas, which could be primary, that is non-Hodgkin lymphoma, secondary as lymphoma or Sjogren syndrome, lymphoma in Sjogren syndrome. Then secondaries, which could be local in the head, neck or distant from the skin or bronchus. Then some unclassified tumor-like lesion, which could be solid or cystic. Solid are the benign adenomatoid hyperplasia or benign lymphoepithelial lesion. Cystic in the form of salivary gland cyst. Then the staging of the tumors, that is the AGCC 8 staging of the major salivary gland tumors. So first the T staging, T1 when the tumor is less than 2 centimeter with no extraparenchymal extension. T2 where the tumor is 2 to 4 centimeter without any extraparenchymal extension. T3 when the tumor is more than 4 centimeter, or it could be of any size with extraparenchymal extension. T4A is when they invade skin, mandible, ear canal or facial nerve. T4B when it invades the skull base, pterygoid plate or carotid artery.
So this was T staging. Now we see the nodal staging, where N1 is the single ipsilateral lymph node less than 3 centimeter. N2 A is single ipsilateral lymph node of 3 to 6 centimeter. N2B is multiple ipsilateral less than 6 centimeter lymph node. N2C is bilateral contralateral less than 6 centimeter lymph node. N3A is more than 6 centimeter. N3B is extranodal extension, and M is distant metastasis. So we'll just quickly revise it. T1 when the size is less than 2, 2 से छोटा है और कहीं बाहर स्प्रेड नहीं किया है. T2 is 2 से 4 एंड कहीं बाहर स्प्रेड नहीं किया है. T3 आइदर 4 से बड़ा या फिर कोई भी साइज का विथ एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल एक्सटेंशन इन्हें बाहर स्प्रेड किया है. T4A जहाँ पे स्किन, मैंडिबल, ईयर कैनाल या फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है. T4B वेयर स्कल बेस, टेरोइड प्लेट या कैरोटिड आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहा है. N1 जहाँ पे सिंगल सेम साइड पे लेस देन 3 सेंटीमीटर का लिम्फ नोड है. N2 जहाँ पे सिंगल इप्सिलैटरल 3 से 6 सेंटीमीटर का या मल्टीपल इप्सिलैटरल सेम साइड पे लेस देन 6 सेंटीमीटर, या फिर दोनों साइड पे बायलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल लेस देन 6 यानी 6 से छोटा. यानी बेसिकली 6 से छोटा होगा तो चलेगा, मल्टीपल होगा तो या फिर कॉन्ट्रालैटरल बायलैटरल होगा. 6 से बड़ा है तो N3A, और अगर एक्स्ट्रानोडल एक्सटेंशन हो रहा है, बाहर स्प्रेड कर रहा है तो N3B. M1 distant metastasis. Now we come to the stage grouping, where stage 1 is T1, stage 2 is T2, यानी साइज ऑफ ट्यूमर पे डिपेंड कर रहा है. स्टेज 3 इज T3, साइज बड़ा हो गया 4 से ज़्यादा, या फिर N1 विथ यानी सिंगल इप्सिलैटरल लिम्फ नोड. देन 4A इज T4A, यानी स्किन, मैंडिबल, ईयर कैनाल, फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर गया, अलॉन्ग विथ N1. और एनी ट्यूमर विथ N2 यानी साइज बढ़ गया 3 to 6 सेंटीमीटर हो गया है, या फिर मल्टीपल कॉन्ट्रालैटरल बायलैटरल है. देन स्टेज 4B वेयर N3 यानी 6 से बड़ा है या एक्स्ट्रानोडल एक्सटेंशन है, या फिर T4B यानी स्कल बेस को, टेरोइड प्लेट या कैरोटिड आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहा है. और स्टेज 4C यानी डिस्टेंट मेटास्टासिस हो रहा है. Now we see the most common site of salivary gland tumor is parotid, and it is around 70%. It includes 70% of the salivary gland tumor, यानी 70% ट्यूमर जो है salivary gland के parotid में ही हो रहे हैं, और 10 से 20% माइनर salivary gland में हो रहे हैं, अराउंड 10% सबमैंडिबुलर ग्लैंड में हो रहे हैं, और लेस देन 1% सबलिंगुअल ग्लैंड में हो रहे हैं. अब ये जितने भी हो रहे हैं उसमें से 80% बिनाइन होंगे, 20% मेलिग्नेंट होंगे. 90% ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड जो है वो मेलिग्नेंट होंगे, और 50% ऑफ सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड मेलिग्नेंट होंगे. तो जैसे हम देख रहे हैं, जैसे जैसे सलाइवरी ग्लैंड का साइज छोटा होता जा रहा है, वैसे मेलिग्नेंसी का चांस बढ़ते जा रहा है. पैराटिड में 20% मेलिग्नेंट है, सबमैंडिबुलर में 50% मेलिग्नेंट है, और माइनर सलाइवरी ग्लैंड में 90% मेलिग्नेंट है. अब एक रूल है, रूल ऑफ 80. रूल ऑफ 80 में क्या हो रहा है, तो 80% पैराटिड ट्यूमर बिनाइन है. 80% पैराटिड ट्यूमर जो है वो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है मोस्टली, यानी बिनाइन है. 80% प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो है वो पैराटिड में ग्रो करते हैं, मतलब वो कहीं और पे भी हो सकते हैं जैसे सबमैंडिबुलर में. 80% पैराटिड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो है वो सुपरफिशियल लोब में इन्वॉल्व होते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट रूल ऑफ 80. देन सलाइवरी न्यूप्लाज्म, ओनली 3 to 4% ऑफ दी ऑल हेड नेक न्यूप्लाज्म. तो ये सलाइवरी ग्लैंड के जो न्यूप्लाज्म है वो सिर्फ 3 से 4% ऑफ हेड नेक ट्यूमर को एनकम्पास कर रहे हैं. ठीक है. देन पैराटिड ट्यूमर. तो पैराटिड इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सलाइवरी ट्यूमर, ये तो अपन ने देख लिया है. और इसमें मोस्ट कॉमनली कहाँ पे अराइज होता है, सुपरफिशियल लोब में, जो कि बिलो, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ द नेक है, इन दी अपर नेक. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ईयर लोब्यूल है वो लिफ्ट अप हो जाता है, और उसके बाद उसका नाम होता है कर्टन साइन, बोलते हैं कर्टन साइन, लिफ्ट अप ऑफ द ईयर लोब्यूल. ट्यूमर का लिमिटेड मोबिलिटी होगा, फिक्सिटी टू स्किन और बोन होगा, ये सारे फीचर्स सजेस्टिव करेंगे मेलिग्नेंसी की तरफ. डीप लोब होगा तो पैराफेरेंजियल मास दिखेगा रेट्रोटॉन्सिलर एरिया में.
पैराफेरेंजियल, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, निगलने या फिर स्नोरिंग आवाज होगा सोते समय। फेशियल नर्व पाल्सी हो सकता है जो मेलिग्नेंसी इंडिकेट कर सकता है, दो ये रेयर है। देन एडवांस मेलिग्नेंसी इन्वेडिंग पैराफेरेंजियल स्पेस, तो ये क्रेनियल नर्व को अफेक्ट कर सकता है। कौन सा? 9, 10, 11, 12। सिंपैथेटिक चेन को भी अफेक्ट कर सकता है। मैंडिबुलर नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा, ट्यूमर रीचेस द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व टू स्कल बेस, तो इस वजह से पेन होगा। देन वी सी द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में इनिशियल असेसमेंट में हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और उसकी मदद से एफएनएसी भी करेंगे। सीटी की मदद से हम कॉर्टिकल बोन इन्वॉल्वमेंट पता चलेगा। एमआरआई की मदद से डीप लोब एक्सटेंशन, मैरो इन्फिल्ट्रेशन, पेरीन्यूरल स्प्रेड, फेशियल नर्व, एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिनाइन वर्सेस मेलिग्नेंट ये डिफरेंशिएट होगा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा वर्सेस वार्थिन्स डिफरेंशिएट होगा, और एफएनएसी, ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉमन टॉपिक ऑफ पैरोटिड ट्यूमर। अब हम बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द पैरोटिड देखेंगे। तो उसमें आ रहा है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, जो मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है, जो 5th डिकेड में मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, सुपरफिशियल लोब को इन्वॉल्व करता है एंड जेनेटिकली एन्यूप्लॉइडी में सीन में होता है। अब ये एक मिक्स ट्यूमर है। प्लियोमॉर्फिक नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड है। डुअल ओरिजिन है, एपिथेलियल सेल भी है एंड मायोएपिथेलियल सेल भी है। तो एपिथेलियल सेल कैसे हैं? पॉलीगोनल, स्पिंडल या स्टिलेट शेप्ड हैं। और कैसे फॉर्म में? डक्ट शीट और क्लम्प्स में है। मायोएपिथेलियल सेल क्या है? स्ट्रोमा मैट्रिक्स है, म्यूकॉइड, मिक्सॉइड या हाइलिन मटेरियल का। अब एरिया ऑफ स्क्वामस मेटाप्लेजिया विथ एपिथेलियल पर्स देखने मिलेगा। फाइब्रस सूडो कैप्सूल रहेगा, सूडोपोडिया रहेगा। सूडोपोडिया क्या रहेगा? एक्सटेंशन ऑफ ट्यूमर इन द ग्लैंडुलर पैरेन्काइमा, मतलब ट्यूमर स्प्रेड कर रहा है अपने पैरों से। एक्सटेंशन ऑफ ट्यूमर इनटू ग्लैंडुलर पैरेन्काइमा एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की तरीके से वो स्प्रेड कर रहा है और इसी वजह से वो रिकरेंस भी होता है। अभी रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी कार्सिनोमा कन्वर्ट होने की प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में कितनी होती है? 10%। 15 साल में, तो हर ओवर टाइम ये बढ़ते जाता है। तो ध्यान रखना है कि ज़्यादा लेट नहीं करना है निकलवाने में। ट्रीटमेंट क्या होगा? सर्जरी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? सुपरफिशियल पैरेटोडेक्टोमी सर्जरी की मदद से। इसमें हम क्या करेंगे? ज़रूरत पड़ने पे टोटल पैरेटोडेक्टोमी भी करना पड़ सकता है अगर स्प्रेडेड है ज़्यादा तो। सुपरफिशियल पैरेटोडेक्टोमी में हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिसेक्शन करेंगे, ठीक है। और ये जो है एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिसेक्शन वो सिमिलर है मैनेजिंग के बिनाइन लीजन के। तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिसेक्शन भी सफिशिएंट है, सिमिलर टू टोटल पैरेटोडेक्टोमी, खास करके बिनाइन लीजन में, क्योंकि इस वजह से हमारा फेशियल पाल्सी और फ्रेज सिंड्रोम का चांसेस कम हो जाता है। तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिसेक्शन इज नॉन इंफीरियर इन मैनेजिंग बिनाइन ट्यूमर विद डिक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ फ्रेज एंड फेशियल पाल्सी। सिर्फ ट्यूमर का इन्यूक्लिएशन करेंगे, एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिसेक्शन नहीं करेंगे, तो रिकरेंस का चांसेस बढ़ जाता है अराउंड 20 to 45%। नाउ वी सी दी वॉर्थिन्स ट्यूमर। सेकेंड, वॉर्थिन्स ट्यूमर। वॉर्थिन्स ट्यूमर का दूसरा नाम है पैपिलोमा, पैपिलरी सिस्टेडिनोमा लिम्फोमेटोसम, या फिर मोनोमॉर्फिक एडिनोमा या एडिनोलिम्फोमा। इसमें दो थ्योरी है। एक थ्योरी है हेट्रोटॉपिक सलाइवरी डक्ट ट्रैप्ड विद इन द इंट्रापैरोटिड और पैरापैरोटिड लिम्फोइड टिश्यू, मतलब सलाइवरी डक्ट ट्रैप हो गया है पैरोटिड के लिम्फोइड टिश्यू में, उस वजह से वो हो रहा है। या तो एपिथेलियल प्रोलिफरेशन हो रहा है जिसके वजह से कॉन्कमिटेड लिम्फोसिटिक रिस्पॉन्स हमें देखने मिलेगा और ये सजेस्ट करेगा नॉन इंट्रानोडल ऑकरेंस। अब ये जो ट्यूमर है ये सेकेंड मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है। मैलिग्नेंट चांसेस लेस देन 1% है। जनरली बायलैटरल होता है, तो वार्थिन्स याद रखना है कि बायलैटरल होता है। मोस्ट कॉमन साइट इसमें भी पैरोटिड है। पैरोटिड में कहाँ पे? तो टेल ऑफ पैरोटिड। 10% डीप लोब में फाउंड होते हैं। मेल्स में मोर कॉमन है फीमेल से, स्मोकर्स में कॉमन है, ओल्ड एज एंड ओबेसिटी वाले पेशेंट में कॉमन है। ट्यूमर कॉन्सेंट्रेट करता है टेक्नीशियम 99, तो इस वजह से सिंटिग्राफी हम कर सकते हैं। ऑन्कोसाइटोमा ऑल्सो
शोज टेक्नीशियम 99 के लिए कॉन्सेंट्रेशन, तो वो भी हमें सिंटिग्राफी में दिख सकता है। अपीयरेंस कैसा होगा, तो सिस्ट लाइंड बाय पैपिलरी प्रोलिफरेशन ऑफ bilayered oncocytic epithelium with basaloid cell, तो पैपिलरी प्रोलिफरेशन ऑफ bilayered oncocytic epithelium, ठीक है। स्ट्रोमा लिम्फोसाइट ये भी देखने मिलेगा along with germinal central and mantle zone। सुपरफिशियल पैरेटिडेक्टमी, इसमें रिकरेंस नहीं मिलता है, तो सुपरफिशियल पैरेटिडेक्टमी सफिशिएंट फॉर द ट्रीटमेंट। नाउ वी सी द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स which is rare though in salivary gland, but we'll see them and see their management. So we'll see three of the malignant tumors, that is mucoepidermoid carcinoma, adenoid cystic carcinoma and adenocarcinoma. So first, that is the mucoepidermoid carcinoma. It is the most common salivary gland malignancy. सबसे ज़्यादा कॉमन है, कितना 35% ऑफ द salivary malignancy, 50% इसमें मेजर salivary gland, 50% इसमें हो रहा है मेजर salivary gland में। मोस्ट कॉमन पैरेटिड malignancy, पैरेटिड में मोस्ट कॉमनली हो रहा है। अपीयरेंस कैसा है, तो एपिडर्मोइड सेल्स है, म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं या इंटरमीडिएट सेल्स हैं। इसमें कैसा होगा, मल्टीसिस्टिक विथ सॉलिड कंपोनेंट देखने मिलेगा। ग्रेड्स क्या होंगे, लो, इंटरमीडिएट और हाई। जो बेस होगा नेक्रोसिस पे जिसमें 2 पॉइंट मिल सकते हैं, न्यूरल इन्वेजन पे जिसमें फिर 2 पॉइंट मिल सकते हैं, एनाप्लेजिया जो 4 पॉइंट में डिवाइड होगा, माइटोसिस मोर देन 4 पर हाई पावर फील्ड जो 3 पॉइंट में डिवाइड होगा, एंड मोर देन लेस देन 20% सिस्टिक यानी ज़्यादा सॉलिड है तो उस हिसाब से 2 पॉइंट मिलेगा। मोर सॉलिड इज मोर हाई ग्रेड, तो 0 से 4 पॉइंट रहा तो लो ग्रेड, 5 to 6 पॉइंट है तो इंटरमीडिएट ग्रेड, एंड मोर देन 7 है तो हाई ग्रेड। मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका, तो 6 + 7 कितना हो गया, 13 पॉइंट्स, तो मैक्सिमम 13 पॉइंट मिल सकता है। अब लो ग्रेड में हम सब टोटल या टोटल कंजर्वेटिव पैरेटिडेक्टमी करेंगे, हाई ग्रेड में पैरेटिडेक्टमी करेंगे विथ नेक डिसेक्शन एंड रेडियोथेरेपी। नाउ वी सी दी एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, जो सेकेंड मोस्ट कॉमन सलाइवरी मैलिग्नेंसी है और मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड, यानी माइनर सलाइवरी ग्लैंड में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा मैलिग्नेंसी हो रहा है, एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। ये कितना परसेंट इन्वॉल्व होता है, तो 22% ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर। ये एग्रेसिव है, यानी इसमें पेरिन्यूरल स्प्रेड कॉमनली मिलेगा, हेमाटोजेनस स्प्रेड मिलेगा, लिम्फेटिक स्प्रेड लेस कॉमन है, और अचानक से ये ग्रो करने लगता है। लॉन्ग इंडोलेंट पीरियड विद सडन स्पर्ट्स ऑफ ग्रोथ, यानी शांत था अचानक से ग्रो करने लगेगा। हिस्टोलॉजी में हमें क्लासिक क्रिब्रिफॉर्म मिलेगा या ट्यूबुलर मिलेगा या सॉलिड बेसिलॉइड मिलेगा, और सॉलिड का जो पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा रिकरेंस करता है। ग्रेड क्या है, लो ग्रेड क्रिब्रिफॉर्म या ट्यूबुलर, इंटरमीडिएट जिसमें 30 to 70% सॉलिड है, हाई में मोर देन 70% सॉलिड है। तो सॉलिड कंपोनेंट बढ़ रहा है मतलब ग्रेड बढ़ रहा है, हाई ग्रेड होते जा रहा है जिसका प्रोग्नोसिस खराब हो सकता है। देन 5th to 6th डिकेड में कॉमनली मिलता है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, स्लो है लेकिन अग्रेसिव है। इसमें ट्रीटमेंट करेंगे टोटल रेडिकल या कंजर्वेटिव पैरेटिडेक्टमी डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ। देन एडिनोकार्सिनोमा जो 3 वैरायटी का हो सकता है, एसिनिक सेल या फिर पॉलीमॉर्फस लो ग्रेड एडिनोकार्सिनोमा और नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड एनओएस। अब एसिनिक कार्सिनोमा जो है ये इंडोलेंट है, लो ग्रेड न्यूप्लाज्म है, वुमेन में ज़्यादा कॉमन है। वेरिएंट इसके माइक्रोसिस्टिक पैपिलरी फॉलिकुलर मेडिलरी है, माइक्रोसिस्टिक मोस्ट कॉमन है। जो पॉलीमॉर्फस लो ग्रेड एडिनोकार्सिनोमा है वो एसोसिएटेड होता है किससे, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा से, जो कि बिनाइन ट्यूमर है पैरेटिड का। देन एनओएस वाला जो है वो मोस्ट कॉमन वेरिएंट है अमॉन्ग द एडिनोकार्सिनोमा और इन्वेजिव और अग्रेसिव है। इसके ट्रीटमेंट में हम वही सुपरफिशियल, टोटल या फिर कंजर्वेटिव या फिर रेडिकल पैरेटिडेक्टमी डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, सुपरफिशियल या टोटल, कंजर्वेटिव या रेडिकल पैरेटिडेक्टमी करेंगे। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, तो मोस्ट कॉमन डिपॉजिट जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा से ये आते हैं यहाँ पे पैरेटिड में। इसके बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्राइमरी ऑफ टेम्पोरल रीजन, ये भी यहाँ पे मिलेगा। एनाप्लास्टिक अपीयर लेट इन लाइफ और बहुत अग्रेसिवली बिहेव करता है लेट लाइफ अपीयर करने के बाद। अभी हम देखेंगे पैरेटिड सर्जरीज।
So now we'll be seeing parotid surgeries. So depending on the extent of parenchymal excision, मतलब कितना निकाल रहे हैं, we can divide it into superficial और total. सुपरफिशियल भी दो में है, पार्शियल एंड कंप्लीट. पार्शियल में हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिसेक्शन करेंगे, वाइड लोकल एक्सीजन विद 1 सेंटीमीटर मार्जिन. देन डिपेंडिंग ऑन द एटीट्यूड टुवर्ड्स द फेशियल नर्व, इट कुड बी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, रेडिकल. कंजर्वेटिव में हम फेशियल नर्व और उसकी ब्रांचेस को प्रिजर्व करेंगे, सेमी कंजर्वेटिव में हम कुछ ब्रांचेस को प्रिजर्व करेंगे, और रेडिकल में सेक्रीफाइस कर देंगे. एक्सटेंडेड रेडिकल में हम एडिशनल टू सेवेंथ नर्व और भी चीज़ें निकालेंगे, जैसे स्किन, इंफ्राटेम्पोरल फेशिया, TMJ, मैंडिबल, मैसेटर एंड पेट्रस टेम्पोरल बोन. Now we see the steps of the parotid surgery, that is the common superficial parotidectomy. So first is the incision, which is a specific incision known as lazy S or modified Blair. We can see in the diagram in the red line which is seen. So preauricular mastoid cervical incision, also it is known as preauricular mastoid cervical incision. Preauricular, mastoid and cervical. So it is divided into 3 regions. So skin flap here is raised anteriorly just above the plane of parotid fascia up to the anterior border of the gland, मतलब आगे की साइड ले लेंगे. Then posteriorly up to anterior border of sternocleidomastoid, आगे एंड पीछे दोनों के साइड पे skin flap raise कर लेंगे. Then we go for mobilization of the gland in the two avascular planes. First along the anterior border of the sternocleidomastoid, sternocleidomastoid के anterior border के against में, up to the anterior aspect of mastoid till the posterior belly of digastric. तो SCM के anterior border से anterior aspect of mastoid जहाँ पे posterior belly of digastric अटैच हो रहा है. Then along the anterior border of the bony and cartilaginous external artery meatus, वहाँ तक हम इसके प्लेन को सेपरेट करेंगे, मोबिलाइज करेंगे anterior to tragus. So anterior border of bony and cartilaginous external artery meatus anterior to tragus, वहाँ पे भी हम मोबिलाइज करेंगे. और हम इलेक्टिव ट्रांजेक्शन करेंगे दो नर्व्स का, दैट इज ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है, इलेक्टिव ट्रांजेक्शन ऑफ ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है, और बचाएंगे किसको, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व को हम प्रिजर्व करेंगे. अब ये सबको कनेक्ट करके हम पोस्टर मार्जिन ऑफ ग्लैंड को फ्री करेंगे ताकि वहां पे हम फेशियल ट्रंक को आइडेंटिफाई कर पाए. कनेक्टेड टू फ्री द पोस्टर मार्जिन ऑफ द ग्लैंड टू अलाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फेशियल नर्व ट्रंक. देन थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फेशियल नर्व ट्रंक. दो मेथड से कर सकते हैं, एंटेरोग्रेड जिसमें ट्रंक टू ब्रांचेस, या रेट्रोग्रेड ब्रांच टू ट्रंक. अब एंटोग्रेड में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नर्व ट्रंक आफ्टर इट एग्जिस्ट फ्रॉम द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, मतलब वहां स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से निकलने के बाद जस्ट हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. अब इसको हम आइडेंटिफाई करते टाइम क्या क्या लैंडमार्क्स ध्यान में रखेंगे, तो फर्स्ट 5 लैंडमार्क है. कोनली स्ट्रेगल पॉइंटर, तो इंफीरियर पोर्शन ऑफ द कार्टिलेजिनस कैनाल, वहां पे मिलेगा. फेशियल नर्व कहाँ पे, 1 सेंटीमीटर डीप एंड इंफीरियर टू द टिप, तो ये ट्रिगल पॉइंटर के 1 सेंटीमीटर डीप एंड इंफीरियर मिलेगा हमको. अपर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, तो उसके इमीडिएटली सुपीरियरली रहेगा, ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक. देन वी हैव स्क्वामोटाइम्पैनिक फिशर, जहाँ पे वो मिलेगा. स्टाइलॉइड प्रोसेस, तो फेशियल नर्व जस्ट उसके सुपरफिशियली रहेगा. देन मैस्टॉइड प्रोसेस, जिसको ड्रिल करके हम आइडेंटिफाई करेंगे नर्व को, जनरली वहाँ पे प्रॉक्सिमली रहता है. देन रेट्रोग्रेड मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, जनरली जब री ऑपरेशन या पोस्ट रेडियोथेरेपी का पेशेंट है तब अपने को ये मेथड यूज करना है, क्योंकि एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस रहता है सर्जिकल फील्ड में, तो इसलिए ये मेथड काम आता है. इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एक मेन ब्रांच को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ट्रंक की तरफ ट्रेस करेंगे. अब कैसे मिलेगा, तो बक्कल ब्रांच जो है नर्व का, वो हमको मिलेगा पैरोटिड डक्ट के रिलेशन में. मार्जिनल मैंडिबुलर हमको मिलेगा फेशियल नर्व, फेशियल वेसल्स के रिलेशन में. इंपॉर्टेंट हमको ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग के लिए ध्यान रखना है, अगर इंजरी टू स्टाइलोमास्टोइड आर्टरी हुआ जो लैटरल टू नर्व है, तो अपने को ध्यान रखना है कि स्टाइलोमास्टोइड आर्टरी प्रिजर्व हो जाए, क्योंकि वो जस्ट इमीडिएटली लैटरल टू नर्व है, क्योंकि हम पहले स्टाइलोमास्टोइड आर्टरी की तरफ जाएंगे, उसके बाद नर्व की तरफ आएंगे. देन डिसेक्शन ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ फेशियल नर्व, इसमें हम क्या करेंगे, डिसेक्ट द इन द पेरिन्यूरल प्लेन, पेरिन्यूरल प्लेन में हम डिसेक्ट करेंगे और ओवर द नर्व टनल बनाएंगे, उसको खोल देंगे. प्रोसीड फ्रॉम ट्रंक टू पेरिफेरी एक्सेप्ट फॉर बक्कल ब्रांच, मतलब बक्कल ब्रांच के अलावा कोई भी ब्रांच अगर ट्रांसेक्ट होती है तो हमको उसको इमीडिएटली रिपेयर करना है विथ हेल्प ऑफ केबल ग्राफ्ट, जो हम लेंगे ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व से. तो बक्कल ब्रांच कॉम्प्रोमाइज होगी तो चल जाएगा, लेकिन बाकी नहीं होनी चाहिए. देन वी क्लोज इट अंडर अ सक्शन ड्रेन. This was all about parotid surgery and steps. Now we see the complication.
द कॉम्प्लिकेशन आर हेमाटोमा, जिसको जरूरत पड़ने पे इवैक्यूएट करना पड़ सकता है टाइमली। सियालोसील और सिरोमा, जो कि रॉ ग्लैंड सरफेस है, वहाँ पे कलेक्शन ऑफ सलाइवा होगा या लीकेज ऑफ सलाइवा होगा वूंड्स में से। तो इसका क्या क्या करना है, जरूरत पड़ने पे ड्रेन करना है, ड्रेसिंग करना है प्रेशर के साथ। बोटॉक्स देने से रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन फ्रॉम पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स कम हो जाएगा, तो वो सिक्रीशन कम कर देगा, तो वो यूज़ कर सकते हैं। डिफॉर्मिटी हो सकती है, फेशियल स्कार, रेट्रोमैंडिबुलर हॉलोइंग, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय लोकल रोटेशन ऑफ द पोस्टर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक या फिर एब्डोमिनल फैट ग्राफ्ट यूज करके। नमनेस हो सकता है ईयर लोब में ड्यू टू इंजरी ऑफ द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, और ये ओवर टाइम ये कम भी हो जाएगा। फेशियल वीकनेस, फेशियल नमनेस, क्यूटेनियस डिनर्वेशन, एक्सटेंसिव रेयरिंग ऑफ द थिन फ्लैप, मतलब पतला फ्लैप रहने की वजह से वहाँ पे नर्व का डैमेज हो जाएगा, डिनर्वेशन, और उस वजह से नमनेस होगा। इन्फेक्शन, फ्लैप नेक्रोसिस, फेशियल नर्व इंजरी, फ्रेज सिंड्रोम, रिकरेंस, ये कुछ और कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम अभी थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। फ्रेज सिंड्रोम को, तो फ्रेज सिंड्रोम क्या है, तो गुस्टेटरी स्वेटिंग है, मतलब स्वेटिंग एंड एरिदिमा ओवर द पैरोटिड रीजन अपॉन साइट, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड, जो ऑटोनॉमिक सिमुलेशन है, मतलब देखा, सूंघा या टेस्ट किया खाना तो पसीना भी आने लगेगा पैरोटिड रीजन में। ये क्यों हो रहा है, डैमेज टू द ऑटोनॉमिक इनर्वेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन डैमेज हो जा रही है, और उसमें रीजनरेट क्या हो जा रहा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, किसका, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व का, तो ये स्टिमुलेट करेगा ऊपर का स्किन। अब डायग्राम से देखते हैं, नॉर्मली क्या होता है, सिंपैथेटिक सप्लाई सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से प्लेक्सस अराउंड दी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी डायरेक्टली स्किन में जाता है, वैसोमोटर, वहां से स्वेटिंग होता है। कैपिलरी और स्वेट ग्लैंड्स को डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, जो कि सिंपैथेटिक सप्लाई है। अब ऑरिकुलर टेम्पोरल से पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जा रहा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम दी ओटिक गैंग्लियन, ऑरिकुलर टेम्पोरल सिक्रेटोमोटर पैरोटिड को दे रहा है। अब सर्जरी के टाइम पे यहाँ पे डैमेज हो गया, और डैमेज होके ये जो सिक्रेटोमोटर फाइबर है ये इससे भी कम्युनिकेट हो रहा है, इससे भी ज्वाइन हो जा रहा है, किससे, जो हमारा स्किन में जो प्लेक्सस अराउंड ईसीए से आ रहा है, जो हमारा सिंपैथेटिक चेन से आ रहा है, सिंपैथेटिक सर्वाइकल गैंग्लियन से, sympathetic supply। तो abnormal innervation of skin overlying the parotid by the parasympathetic fiber in the auriculotemporal nerve, auriculotemporal का nerve का फाइबर ऊपर चिपक गया, तो इस वजह से वहां पे गड़बड़ हो रहा है। तो whatever normally stimulates the secretomotor activity in the parotid gland, जैसे कि देखना, खुशबू को सूंघना खाने के, तो वहां पे वो पसीना छूटने लग जाएगा। ऑल्सो स्टिमुलेट्स द स्किन एंड स्वेट ग्लैंड ऑफ द पैरोटिड एरिया। इसका इंसिडेंस ज़्यादा नहीं है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, 2 से 80% तक हो जाता है। इंसिडेंस फ्रेज सिंड्रोम का कैसा है, मिनिमल है विद एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिसेक्शन, मतलब एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिसेक्शन करने पे चांस कम है, क्योंकि पैरोटिड फेशिया को प्राइमरली रिपेयर कर देते हैं और कम्युनिकेशन बिटवीन द ड्यूनिड पैरेन्काइमा और सबक्यूटस को प्रिवेंट कर लेते हैं। डायग्नोस कैसे करते हैं इसको, स्टार्च आयोडीन टेस्ट से। तो पैरोटिड एरिया में हम आयोडीन पेंट करेंगे, उसको सूखने देंगे, वहां पे स्टार्च लगाएंगे, और फिर जैसे ही पसीना आएगा तो वो ब्लू हो जाएगा। तो यह है स्टार्च आयोडीन टेस्ट। नाउ वी सी दी मैनेजमेंट ऑफ फ्रेज सिंड्रोम। मैनेजमेंट में हम प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट देखेंगे। प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ बैरियर बिटवीन दी पैरोटिड बेड एंड दी सबक्यूट, मतलब बीच में कुछ लगा देंगे। मिनिमाइज इनअप्रोप्रिएट नर्व रीजनरेशन होगा, इससे क्या क्या कर सकते हैं, स्टर्नोमास्टोइड मसल फ्लैप फ्लैप लगा देंगे, टेम्पोरालिस फेशिया फ्लैप लगा देंगे, या फिर आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लगा देंगे जो एक्सिलरी डर्मिस है। तो ये सब की वजह से कैसा है कि बीच में एक ये आ जाएगा बैरियर, तो कम्युनिकेट नहीं होगा। देन वी हैव ट्रीटमेंट, टॉपिकल, लोकल एंड सर्जिकल। टॉपिकल में एंटीपर्स्पिरेंट जो कि है एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एंटीकोलिनर्जिक स्कोपोलामिन या ग्लाइकोपाइरोलेट। लोकल ट्रीटमेंट में बोटॉक्स जो हम इंजेक्शन देंगे अफेक्टेड स्किन के उधर, या फिर इरेडिएशन, इरेडिएशन की मदद से भी हो सकता है। सर्जिकल में टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी, इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से जो आ रहा है नाइन्थ क्रेनियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल, वहां से निकला अपना टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ क्रेनियल नर्व, अर्नोल्ड्स नर्व, उसने बनाया आगे जाके, ये नर्व ने बनाया टिम्पैनिक प्लेक्सिस, टिम्पैनिक प्लेक्सिस से लेसर पेट्रोसल नर्व, वो जुड़ गया ऑटिक गैंग्लियन में, ऑटिक गैंग्लियन से ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व निकला, और वो दे रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेटोमोटर फाइबर। तो टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी यानी हम टिम्पैनिक प्लेक्सिस के पहुंचने से पहले टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ क्रेनियल नर्व को ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, न्यूरेक्टमी कर रहे हैं, तो वो आगे सप्लाई ही नहीं देगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट पैरोटिड ग्लैंड tumors and parotid surgery, Frey syndrome. Hope you have understood, and please like, share and subscribe. Keep studying, keep growing, and never give up.
because great things take time. And see you in next video. Thank you.